Students, myself Rajiv Bhatia, Assistant Professor in Economics at Shri Atam Vallabh Jain College, Ludhiana. Today, I'm going to discuss with you a very, very important theory of macroeconomics, that is classical theory of income, output, and employment. This theory is basically, it is not given by a single economist, but his theory is a collection of views of the different classical economists who were very, very popular during the mid-18th century. I can name some of the classical economists who have contributed a lot in this theory. Mainly, the economists were Adam Smith, J.B. Say, J.S. Mill, Karl Marx, Marshall, David Ricardo, Professor Pigot, etc. There are some assumptions. Let us discuss the assumptions of the theory. First assumption is there is existence of full employment in the economy. Theory assumes that government should not interfere in the economy. Government should only maintain law and order in the country. Government should not do any interference in the economic affair of the countries. So there is a closed economy, lacking the foreign trade with the rest of the world. Perfect competition, labor market में भी है, product market में भी है. Labor is homogeneous, there is no difference in the ability of labor. Total output जो economy की है, that is divided between consumption and investment. Money is assumed to be only a medium of exchange. Money को store करके नहीं रख सकते. Money has no store of value. It can only be used as a medium of exchange. तो थ्योरी में एक बेसिक चीज ये है कि थ्योरी ये मान के चल रही है कि three variables in the economy should be free to move up and down. There should be flexibility of wage rate, price level, and rate of interest in the economy. Money wage or real wage जो है, they are directly related. If we increases the money wages, real wages will be automatically increased. So there is a direct and proportional relation between money wage and real wage. दो important variable saving and investment दोनों ही depend करते हैं rate of interest पर. Saving is a positive function of rate of interest. More is the rate of interest, more will be saving. And investment is a negative function of rate of interest. More is the rate of interest, less will be the investment in the economy. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट करता है इकॉनमी में. जैसे जैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे, द आउटपुट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. और ये थ्योरी लॉन्ग पीरियड की थ्योरी है. थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि इन द शॉर्ट पीरियड देयर मे बी डिस्टर्बेंस, देयर मे बी डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, बट इन द लॉन्ग पीरियड if there is any disequilibrium in the economy, that will be automatically cured by the flexibility of wage rate, price level, and rate of interest. Theory शुरू यहाँ से होती है कि as per the theory, there is always a full employment in the economy in the state of equilibrium. Now, what is state of equilibrium? State of equilibrium is it's that situation where aggregate supply in the economy is equal to aggregate demand. एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जेबीसी का एक लॉ है, दैट इज नोन एज द सेज लॉ ऑफ मार्केट. सेज लॉ ऑफ मार्केट की स्टेटमेंट यही है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. आपको प्रोड्यूसर को सप्लाई करनी चाहिए, डिमांड विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. तो हम जब भी क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि क्लासिकल थ्योरी इज बेसिकली ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द सप्लाई. You do the supply, demand will be automatically created, and aggregate supply and aggregate demand are always equal. So there is no chances of overproduction, there is no chances of unemployment. Full employment is a normal feature of the economy in the state of equilibrium. और full employment का मतलब क्या है? Absence of involuntary unemployment. Involuntary unemployment नहीं होनी चाहिए. Voluntarily you may be unemployed,
There may be voluntary unemployment. There may be some other kinds of unemployment which are temporary in nature. जैसे कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है. टेम्परेरली टेक्निकली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ सीजन चेंज हो रहा है, कई बार रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ गई है, कई बार मशीनरी की प्रॉब्लम आ गई है. तो देयर में बी सम काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट along with the full employment. So basically, it's the absence of involuntary unemployment. As per the theory, whenever there is a state of equilibrium in the country, there is a full employment in the economy, there will be maximum output in the economy. In this theory, it is assumed that output depends upon employment. And whenever there is a full employment in the state of equilibrium, जाहिर है कि देश में जो आउटपुट है ये भी मैक्सिमम होगा और डिमांड एंड सप्लाई जो है वो आपस में बराबर होंगी. तो दिस इज ए नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इट इज हियर शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो. सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर, दीज आर इक्वल. OW0 is the real wage rate. OL0 is the amount of labor employed. There is a full employment in the economy as the supply of labor is equal to demand of labor. और उसके बिल्कुल नीचे दिखाया गया है कि whenever there is a full employment of labor, there will be maximum output in the economy. The maximum output is OQ0 and the amount of labor employed is OL0, which shows the full employment in the economy. तो ये डायग्राम नटशेल में ये कंक्लूड करती है कि जब भी इक्विलिब्रियम में देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, देश में लेवल ऑफ आउटपुट भी मैक्सिमम होगा. बेसिकली ये थ्योरी तीन चीजों के साथ डील करती है: इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो थ्योरी हमें बताती है कि हाउ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो देश के अंदर मैक्सिमम होंगे. अब अगर ये जो इक्विलिब्रियम है अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारण, तो इसकी जो डिस्टर्बेंस है दैट विल बी ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड इन द लॉन्ग पीरियड. रिस्टोर तब होगी अगर देश में गवर्नमेंट तीन चीजों में इंटरफेयर नहीं करेगी एज पर द थ्योरी. पहली चीज हमने अजम्पशन में भी देखा था, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस लेवल. अगर ये तीन चीजें गवर्नमेंट फ्री छोड़ देती है, इनके ऊपर किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, तो ये तीन चीजों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये लॉन्ग पीरियड में जो डिसइक्विलिब्रियम आया है उसे अपने आप दूर कर देगा. आई विल शो वन बाय वन हाउ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ब्रिंग्स और रिस्टोर द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. तो देखिए साथ में लिखा भी हुआ कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ द कंट्री. अगर गवर्नमेंट इनको ऊपर नीचे नहीं जाने देती, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को रोकती है, तो इक्विलिब्रियम अपने आप रिस्टोर नहीं होगा. तो फर्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट. देयर आर टू क्वेश्चंस. डिमांड ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ रियल वेज नेगेटिवली. अगर वेज रेट कम होगा डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी, वेज रेट बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ लेबर कम होगी. इसी तरह से सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये वेज रेट से पॉजिटिवली रिलेटेड है, रियल वेज रेट से. रियल वेज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज वेयर डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर. डायग्राम शो करती है कि E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सप्लाई ऑफ लेबर कर्व इज ए पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, डिमांड ऑफ लेबर कर्व इज ए नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व. रियल वेज रेट इज OW/P0 and the level of employment is ONF, full employment level. अगर ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू एनी फोर्स, से द रियल वेज रेट इज OW/P1. अगर आप इस रियल वेज रेट पर देखेंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर की जो वैल्यू है वो है W/P1S, डिमांड ऑफ लेबर की वैल्यू है W/P1D. दैट इज सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन द डिमांड ऑफ लेबर. डिसइक्विलिब्रियम आ गया. इस डिक्विलिब्रियम को दूर कौन करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट. अब क्या होगा कि लॉन्ग पीरियड में वेजेस जो है वो नीचे जाने लगेंगे क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है, डिमांड ऑफ लेबर कम है, वेज रेट फॉल करने लगेंगे. और धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड में जब वेज रेट फॉल करने लगेंगे उसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर धीरे धीरे गिरने लगेगी और डिमांड ऑफ लेबर बढ़ने लगेगी.
पहले सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा से, अब वो गिर रही है, डिमांड ऑफ लेबर पहले कम थे, अब वो बढ़ रही है, और करते कराते ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम विल बी रीस्टोर्ड वेयर डिमांड ऑफ लेबर विल बिकम इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। इसी तरह से देयर इज अनदर सिचुएशन when the real wage rate is OW upon P2. Now the demand of labor is more than the supply of labor. As a result of this, real wage rate will start rising. और कब तक rise करते रहेंगे? Up to the point E, where again demand of labor and supply of labor become equal. तो इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि रियल वेज रेट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये अपने आप लॉन्ग पीरियड में इनइक्वालिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर को प्लग कर देगी। शॉर्ट पीरियड में there may be mismatch between demand and supply of labor, but in the long period, if the wage rate is flexible, equilibrium will be restored. Second is flexibility of rate of interest. E is the point of equilibrium where investment and savings are equal. In the classical theory, it is assumed that saving is a positive function of rate of interest, investment is a negative function of rate of interest, and what is equilibrium? Where saving and investment are equal, which is point E. Rate of interest is OR. Now, there may be two situations. Saving may be more than rate of interest, or investment may be more than saving. Say, if the rate of interest is OR, 1, saving is R1B, investment is R1A, that is saving is more than investment. As a result of this, rate of interest will fall. It will go on falling till the equality between saving and investment is restored. In the same way, when the rate of interest is OR2, now the situation is this, that investment is R2D and saving is R2C, that is investment is more than saving. As a result of this, rate of interest will start rising till the equality between saving and investment is restored. So इसमें हो क्या रहा है कि लॉन्ग पीरियड में सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को रीस्टोर करा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। शॉर्ट पीरियड में देयर में बी इनइक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बट इन द लॉन्ग पीरियड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विल बी अगेन इक्वल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फ्लेक्सिबल। थर्ड इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस लेवल। इसके लिए क्लासिकल थ्योरी में एक इकोनॉमिस्ट हुए फिशर, उन्होंने इक्वेशन दी है mv इज इक्वल टू pt, m इज द मनी सप्लाई, v इज द वेलोसिटी ऑफ मनी, p इज द प्राइस लेवल एंड t इज द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स ट्रेडेड इन द इकोनॉमी. v and t are assumed to be constant, so we have two variables, one is the price, other is the money supply. This equation states that there is a direct and proportional relation between money supply and price level. अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, अगर मनी सप्लाई गिरेगी प्राइस लेवल भी गिरेगा, अगर मनी सप्लाई डबल हो जाती है तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा. तो देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल. In the diagram, it is shown that MV is a money supply curve, OP is the price level, where there is a equilibrium in the economy, aggregate demand and aggregate supply are equal. Real income is flowing at a constant rate, that is OQ. Now the money supply increases. As a result of this, MV curve shift upward. What is the increase in money supply? MM1. तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ये डिमांड और सप्लाई की इक्वलिटी को डिस्टर्ब करेगी. विद द मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, aggregate demand will start rising and there will be mismatch between aggregate demand and aggregate supply. देश में डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा. इसको प्लग करने के लिए देयर मस्ट बी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल. जितनी मनी सप्लाई बढ़ी है लॉन्ग पीरियड में, उतना ही प्राइस लेवल बढ़ जाएगा. तो डायग्राम में देखा जा सकता है कि मनी सप्लाई MM1 बढ़ रही है तो प्राइस लेवल भी OP से OP1 बढ़ रही है. और जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा, डिमांड जो मनी सप्लाई के कारण बढ़ गई थी वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी और सप्लाई ऊपर जानी शुरू हो जाएगी एंड इक्विलिब्रियम विल बी रीस्टोर्ड इन द लॉन्ग पीरियड. तो आउटपुट लेवल जो है या इनकम लेवल जो है वो कॉन्स्टेंटली इक्विलिब्रियम लेवल पर दोबारा आ जाएगा ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल. सारी थ्योरी पढ़ने के बाद इन द नटशेल, थ्योरी हमें ये वो कहती है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. 3 चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी लॉन्ग पीरियड में
किसी भी डिसइक्विलिब्रियम को रिजॉल्व कर सकती है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल, वेज रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर थ्योरी के कुछ फीचर्स या इम्प्लीकेशंस देखें तो थ्योरी के अकॉर्डिंगली फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज देयर। शॉर्ट पीरियड में ना तो शॉर्ट पीरियड में देयर में बी ओवर प्रोडक्शन, देयर में बी अनएम्प्लॉयमेंट, there may be mismatch between saving and investment, aggregate demand and aggregate supply, but in the long period जो फ्लेक्सिबिलिटी इन तीन चीज़ों की इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर देगी, तो जनरल ओवर प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही गवर्नमेंट को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, देश में जितनी भी एडजस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी कौन मेंटेन कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। As per the theory, wage rate, rate of interest and prices should be free to move in the economy. और थ्योरी लॉन्ग रन एडजस्टमेंट की बात करती है। शॉर्ट पीरियड में देयर मे बी डिस्टर्बेंस, देयर मे बी डिसइक्विलिब्रियम, देयर मे बी मिसमैच बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, बट इन द लॉन्ग पीरियड if the wage rate, rate of interest and price level are flexible in the economy, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें लॉन्ग पीरियड में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। So in a nutshell, now I am concluding the theory. तो बेसिकली थ्योरी एक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, सप्लाई को डिमांड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, गवर्नमेंट के रोल को इग्नोर करती है, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, और कुछ चीज़ें, कुछ वेरिएबल्स इकोनॉमी में फ्री छोड़नी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो क्लासिकल थ्योरी के बाद दी गई थी, दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर केन्स। इस थ्योरी में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ें भी हैं इस थ्योरी के अंदर। उन कमियों को देखते हुए बाद में प्रोफेसर केन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रस्ट एंड मनी दी थी 1936 में, विच आई विल डिस्कस in another lecture. I hope all of you will be able to understand minute details of the classical theory, जो कि यहाँ से बेस शुरू होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि हाउ टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू मैनेज द एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। थैंक यू।